गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट बाकी है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, राइट। वो पावर ऑफ लेंस थोड़ा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है पहला, ऑलरेडी क्वेश्चन 3 आई थिंक हमने देख चुके थे। तो दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 4 इन लेक्चर नंबर 13 में, राइट क्लास। सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 centimeter held 25 centimeter away from converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of image. Okay class, so this is the question. Now we'll see the solution. So before solution we have to write the given data in that solution. So given data is what? 5 centimeter height means H1 held 25 centimeter away from converging lens. Converging lens means कौन सा lens? Convex lens. And 25 centimeter is what? Object distance. Of focal length 10 centimeter. Focal length कितना है? 10 centimeter. So we'll write down the given data. So given H1 is 5 centimeter, U minus 25 centimeter, right? And it is from converging word, it is a convex lens. Convex lens, the focal length F. So convex lens का focal length positive रहता है कि negative? Yes, positive. So 10 centimeter. Okay. Now we know the U and F, so we can find out the size, position, size and nature of the image. Now use the formula. 1 by F is equals to 1 by, also given में आप ऐसे लिख सकते हो, we need to find V and we need to find H2. Also in that we need to draw the ray diagram. Lastly we will draw the ray diagram. So 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U, right? So we can rearrange the formula like that. V 1 by V is equals to 1 by F plus 1 by U. Now put up the values. So 1 by 10 plus 1 by minus 25. So what we will get? 1 by 10 minus 1 by 25. That is 1 by V. Right? So 1 by V is equals to, if you will get the solution, LCM is here 50, here 5 minus 2. So what I will get? 1 by V is equals to 3 by 50, or V is equals to 50 by 3 centimeter. That should be your answer. Okay class? Right? So this is your position. Now size, for size H2 by H1 is equals to V by U. That is formula. So H2 is equals to V by U into H1. Now put up the value of V, that is 50 by 3. Put up the value of U. U is what? Minus 25. And put up the value of H1. H1 is what? 5. Right class? So after solving this relation, you will get minus 25 becomes 52. 2 into 5 10, यानी कि H2 is equals to minus 10 by 3 centimeter. That should be your answer. That is your H2. Now the nature is real and inverted as usual. So next is draw the ray diagram. So we will draw the ray diagram. Okay, आप कॉपी कर लीजिए ये चीज। ओके, क्या मिला था याद रखिए, वो सॉल्व करेंगे हम। देखिए लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस,
प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे F, यहाँ पे लगभग 2F, यहाँ से लेकर यहाँ तक है F डैश और ये है 2F डैश. Now place the object at 25 centimeter. What is the focal length? 10 centimeter. Right? So here is a 20 centimeter. So approximately I will place the object of 5 centimeter at what distance? 25 centimeter. Okay class, that means beyond the 2F dash. We remember that methods of image formation. When the object beyond 2F dash, तो इमेज कहाँ मिलती थी? F और 2F के बीच में. देखो आपको याद करो न्यूमेरिकल V कितना मिला था? 50/3 सेंटीमीटर. 50/3 सेंटीमीटर अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा 17 अप्रोक्सीमेटली 17 नहीं सॉरी 16.66 सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर. तो 16 यानी ये F और 2F के बीच में. चलिए रे डायग्राम. इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरा इंसिडेंट रे आप कहां से पास करवाते हो? मान लो F डैश से. ओके क्लास. सो जो पैरेलल गई वो कहां से रिफ्रैक्ट होगी? फोकस से. और जो F डैश से गई वो कहां से रिफ्रैक्ट होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो लगभग आपका यहाँ पे आपको इमेज मिली. यहाँ पे नाम देना है तो ए बी, ए डैश, बी डैश. ओके क्लास. सो यहाँ आपको इमेज मिली जिसका डिस्टेंस होगा V इज इक्वल्स टू 16.66 सेंटीमीटर. साइज कितना मिला था? 10/3. तो H2 यानी AB डैश का साइज कितना लिखेंगे हम? 10/3 माइनस 10/3 सेंटीमीटर. Okay class, so this should be your ray diagram, right? So this like this question also they may ask. Okay class. Now okay, so question number 5, next question. A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from a lens? Also draw the ray diagram, right? ray diagram भी आपको draw करना है. चलिए देखते हैं फटाफट. देखना ध्यान से. गिवन डेटा लिखते हो. कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस. तो फोकल लेंथ आपको गिवन है F इज इक्वल्स टू कितना? +15 माइनस 15 सेंटीमीटर. फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस. 10 सेंटीमीटर क्या है ये? राइट. इमेज डिस्टेंस यानी V. राइट. V किधर होता था? याद करो. ये आपका कॉन्केव लेंस इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से. ये तो ऑब्जेक्ट किधर मिलता था? ऑब्जेक्ट अगर इधर रखते तो इमेज किधर मिलती थी? वर्चुअल इमेज मिलती थी, है ना. तो वर्चुअल इमेज यानी कहाँ मिलती थी आपको? देखो F4 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. यानी V इज नथिंग बट अगेन -10 सेंटीमीटर. करके देखना, थोड़ा सा गलतियां कम हो जाती है. ओके. सो -10 सेंटीमीटर. नाउ what we need to find? The object placed from a lens. How far is the object? That means U we need to find out. Right? F we know, V also know. We can find out the U. You use the formula 1/F is equals to 1/V minus 1/U. क्या फाइंड आउट करना है? U. तो रीअरेंज कर लेंगे फॉर्मूले को. फॉर्मूले को रीअरेंज करते हम. 1/U इज इक्वल्स टू, माइनस टर्म इधर प्लस हो जाएगी, प्लस टर्म उधर जाके माइनस, यानी 1/V minus 1/F. क्या लिख सकते इस तरह से? बिल्कुल. सो पुट अप द वैल्यूज. सो 1/-10 minus 1/-15. माइनस माइनस बिकम प्लस. तो क्या होगा? 1/U इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15. राइट क्लास. ओके. सो दोनों का एलसीएम लेते हो तो क्या मिलेगा? 1/U इज इक्वल्स टू एलसीएम मिलेगा 30, इधर मिलेगा -3 और इधर मिलेगा 2. -3 + 2 यानी कि -1/30 मींस U कितना? -30 सेंटीमीटर. दैट शुड योर आंसर. ओके क्लास.
ऑल्सो क्या बोला है, रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये रे डायग्राम ड्रॉ करना कॉन्केव लेंस है ना को यूज करते हुए, ये आपका होमवर्क होगा कि इसका रे डायग्राम किस तरह से बन सकता है। ऑलरेडी रे डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे बनता है मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। यू पता है अभी, ऑलरेडी वी गिवन है, राइट, एफ आल्सो गिवन है, दैट ऑल थिंग्स है ना अप्रोक्सीमेटली और बाय स्केल वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, बट अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा। तो यानी ये v u कहां पे -30 पे है, यानी कि लगभग लगभग कहां पे है, ये अगर f -15 है तो u -30 यानी 2f पे ये ऑब्जेक्ट है ना। और हमको हमेशा कॉन्केव लेंस पे इमेज कहां मिलती है, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। देखो f कितना है 15, इमेज का डिस्टेंस कितना दिया 10, ओके, यानी O से लेकर F की दूरी के बीच में ही आपको इमेज मिलनी है, राइट, इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस। ओके क्लास, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ 2.5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the principal axis of convex lens of focal length 15 centimeter. The distance of object from the lens is 30 centimeter. Find the position, nature and size of image. Okay class, now we will move toward the given data, right? 2.5 centimeter tall object, that means H1 is 2.5 centimeter. Placed perpendicular to the principal axis of convex lens. Convex lens से ध्यान रखना है। So focal length कितना f, convex lens से focal length कितना plus 15 centimeter. The distance of object from the lens is u 30 centimeter minus 30 centimeter, right? Again question बिल्कुल आसान है। Find the position, nature and the size of image. We need to find out and H2 we have to find out. Right class, so put up the formula 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. What we need to find v, तो 1 by v is equals to क्या बनेगा 1 by f plus 1 by u, इधर ट्रांसफर करके प्लस हो जाएगा। So 1 by 15 plus 1 by minus 30, right class, so 1 by 15 plus 1 by minus 1 by 30, अगर एलसीएम लेते हो तो आपको 30 मिलेगा, इधर 2 minus 1 by v, तो v is equals to या 1 by v is equals to मिलेगा 1 by 30, तो v is equals to कितना 30 सेंटीमीटर is your position of the image. What is size? h2 by h1 is equals to v by u, so h2 is equals to कितना v by u into h1, v कितना 30, राइट क्लास, u कितना -30 इंटू h1, h1 कितना है 2.5, राइट क्लास, सो व्हाट यू विल गेट h2 इज इक्वल्स टू -2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 इज इक्वल्स टू h2, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है 2f पे, तो इमेज भी कहां मिलेगी 2f पे। देखो 30 क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना, लेकिन ये इधर अगेंस्ट द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मिलेगा और ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट क्लास। तो दिस शुड बी योर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ओके क्लास, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा रहता हूं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, राइट, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, m इज इक्वल्स टू h2 बाय h1, h2 कितना है -2.5, h1 कितना है 2.5, राइट, तो m कितना मिलता -1। दिस इज ऑल्सो वे टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। दे मे आस्क the magnification related question in any question, in either it is concave or convex, right, we should remember, okay class। Okay, question number 7, 1/2 of convex lens of focal length
10 centimeter is covered with black paper, can such lens produce an image of complete object placed at a distance of 30 centimeter from the lens? Draw a ray diagram to justify your answer. First of all, try to understand the situation, है ना? What exactly want to ask the question and what you understand, right? So we'll write in solution. First of all, 1/2 of the convex lens, यानी कि आधा कॉन्वेक्स लेंस कवर्ड किया है ब्लैक पेपर से. जैसे कि अगर मैं कोई कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करता हूं, राइट, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं. इसका ये अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन, ऐसे कुछ स्पेसिफाइड नहीं बोला है कि लोअर पोर्शन कवर करो या अपर पोर्शन कवर करो, आपकी मर्जी. जैसे कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं लोअर पोर्शन कवर कर लेता हूं इस तरह से, है ना, ब्लैक पेपर से कवर अप किया गया कुछ इस तरह से, ओके. और बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जिस 30 सेंटीमीटर पे रखूं और इसकी भी फोकल लेंथ गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो क्या वो पूरा इमेज बना पाएगा, राइट? हाँ या ना में आपको बताना है पहली बात. तो अगर बनाता है तो आपको जस्टिफाई करना है रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए. चलिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली हम फोकल लेंथ ले लेते फटाफट. एफ यहाँ पे 2f, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में, ये f डैश और ये 2f डैश, ओके ना. ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 30 सेंटीमीटर. अबे f कितना है, 10, तो f डैश भी 10, 2f 20, तो 30 लगभग इधर आएगा. एक ऑब्जेक्ट रख दिया, a और b, राइट. सो देखो पहले पूरी इमेज बना पाएगा या नहीं, तो आंसर होगा यस. Yes, it can form the full image. How? We'll see. Look, let's check. एक रे गई पैरेलल, राइट क्लास, और दूसरी रे कहां जा सकती है, यहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरह से. ये हो गई इंसिडेंट रे. तो क्या रिफ्रैक्ट होगी, बिल्कुल रिफ्रैक्ट होगी. अभी बियॉन्ड 2f है तो किधर इमेज बनेगी, एक रे जो पैरेलल गई वो होगी फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट से, राइट, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, सॉरी स्ट्रेट लाइन में, कुछ इस तरह से, राइट क्लास. सो देख सकते हो दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहां मिल रही है, f और 2f के बीच में, a डैश b डैश. सो दिस शुड बी योर आंसर, राइट. अप्रोक्सीमेटली आपको अगर कैलकुलेट करना है तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा. ये तो रे डायग्राम हो गया, राइट. कैलकुलेशन कैसे होगा, गिवन फटाफट लिख लेते हैं. गिवन में क्या क्या आएगा, देखो f कितना कॉन्वेक्स लेंस का, 10 सेंटीमीटर, u कितना -30 सेंटीमीटर. तो f और u पता है तो v निकाल लेंगे. कैसे फॉर्मूला, 1/f is equals to 1/v minus 1/u. तो 1/v is equals to क्या लिखते हैं, 1/f plus 1/u, 1/10 plus 1/-30, राइट. तो 1/10 minus 1/30, सही है. तो क्या आएगा एलसीएम, 30, इधर आएगा 3 minus 1, सही है. सो 2/30, यानी कि v कितना, 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट करते हो. सो दैट शुड बी योर आंसर. ये चेक कर लीजिए, f और 2f के बीच में आपको मिल रहा है, यानी v कितना, f कितना 10, 2f कितना 20, तो v दोनों के बीच में 10 और 20 के बीच में यानी 15. प्यारी बात समझ में. सो दैट शुड योर आंसर एंड दैट इज अ पैटर्न एंड रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. ओके क्लास, सो दिस इज क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Okay class, so question number 8, Deepak placed a convex lens 50 centimeter and screen at 74 centimeter. An object placed at 26 centimeter. Find the focal length of lens. If object shift 12 centimeter toward the lens, then find the position of image and draw the ray diagram. And draw the ray diagram, right?
little lengthy or some complicated questions, right? But you need to understand what exactly given in the question. First of all, you consider as a person or a Deepak, right? He placed a lens, right? Obviously he placed a convex lens 50 centimeter. That means supposed to be a, in that solution, one person I will consider, he placed a lens. That means from him to that lens distance, suppose this is a lens, right? So this distance is what? 50 centimeter. Getting my point? Also he placed what? Screen at 74 centimeter. Supposed to be a screen. He placed, means this distance from him is 74 centimeter. Also he placed, I will draw one principal axis here. Also he placed an object at 26 centimeter. That means from this to this distance, I will consider this distance is 26 centimeter. This the given data. Okay. Now from this given data, we need to find out the numerical point of view data. That means from person to object distance is 26 centimeter. From person to lens distance is 50 centimeter. From person to screen distance is 74 centimeter. Right? So automatically object and lens distance, what we will get? This distance we will get 24 centimeter. Right? Also from lens in the sense optical centers too. From lens to screen where the image will form, that distance also we will get. That is, this is 70, this is 50, so remain is 74. What? Remain distance is 24 centimeter. That means we got U and V. Right class? So in given data, what we have to write? After this is the rough sketch or rough pattern to know U and V. It is not compulsion to draw in your solution, but if you will draw while your practice, so you will get more clarity, right? So from this data we got two values, that is U is equals to what? Minus 24 centimeter and V is equals to what? 24 centimeter. I hope you understand, right? स्क्रीन डिस्टेंस कितना है? 74, जहां पे इमेज बनी। ऑब्जेक्ट और लेंस का डिस्टेंस कितना है? पर्सन और लेंस डिस्टेंस कितना है? 50। तो ये 74 और ये 50, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये कितना होगा? 24। वैसे ऑब्जेक्ट और पर्सन का डिस्टेंस कितना है? 26, जिसने रखा, तो लेंस का डिस्टेंस मिल जाएगा 24, राइट? सो वी नो u and v, we can find out that. Okay, put up the formula 1 by v is equals to 1 by v minus 1 by u. Now use 1 by 24 minus of minus 24. If you solve the relation by taking the LCM or by solving the minus, so I will write 1 by 24 plus 1 by 24. So 1 by f is equals to, what is the LCM? 24. Here 1 plus 1. So 2 by 24. So f is equals to kitna? 12 centimeter. That is the focal length of your convex lens. That is the solution of this first question in question number 8. Right class? Find the focal length of the lens. Right? Okay. Now the next question in the same question. If object shift 12 centimeter toward the lens, object किधर था? 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे शिफ्ट किया, है ना? तो ऑब्जेक्ट लगभग कहां पे आ जाएगा? फोकल लेंथ पे। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? u माइनस 12 सेंटीमीटर। f तो आपको पता ही है,
12 सेंटीमीटर। एफ नहीं बदलेगा क्योंकि मीडियम्स नहीं बदल रहे। अगर बाजू के जैसे ये लेंस है, इसके बाजू का जो मीडियम है वो बदल रहा है क्या? नहीं, तो इसका फोकल लेंथ वही रहेगा। लेकिन ये मीडियम अगर बदल गए तो फोकल लेंथ भी बदल जाएगा, है ना। ये अभी आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा, राइट। सो एफ इतना 12 सेंटीमीटर, राइट। यू पता है, राइट। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि वी फाइंड आउट करना है। ओके क्लास, सो फॉर्मूला 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. ओके, सो 1 by v is equals to क्या लिख सकते हैं हम? 1 by f plus 1 by u. Now put the values. So 1 by v is equals to 1 by 12 plus 1 by minus 12. इमेज की जैसा ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा वैसे इमेज भी शिफ्ट होनी ही है, राइट। सो 1 by v is equals to, देखो सॉल्व करते हैं, 1 by 12 minus 1 by 12. So 1 by v is equals to 1 by 0. तो 0 सॉरी प्लस माइनस तो बनेगा 1 by v is equals to 0. तो v is equals to 1 by 0. 1 by 0 यानी कितना? इंफिनिटी। देखो याद करो मेथड। When the object placed at f, the image कहाँ मिलती थी? इंफिनिटी पे मिलती थी, इंफिनिटी। तो राइट रे डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना भी है तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल सा लेंस ड्रॉ कर लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर F टू F डैश टू F डैश। ऑब्जेक्ट को यहां रखे, एक रे जाएगी पैरेलल और दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधा ट्रैवल करेगी और जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से। तो दोनों पैरेलल रे, राइट। याद करिए मेथड, ये कितना है? 12। सो द पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी एंड दैट दिस इज योर diagram, right? I hope you all understood the numericals of convex lens as well as concave lens. A lot of questions are there, right? Try to solve minimum 30 questions, right, from a different books or from online, so you will get more variety and clarities. Okay, for any question supposed to be you will have, you can comment on my channel or directly you can ask on WhatsApp also. Okay, so these are the few questions related to the lenses. Okay class, next and last point of this chapter is power of lens, right? Power of lens represented with the P, capital P. Okay, it's a simple meaning. It is nothing but power of lens is nothing but the reciprocal of the focal length. Power, what is the definition of power of lens? It is the reciprocal of focal length. That is P is equals to 1 by F. Its SI unit is diopter. Right class? SI unit is diopter represented with the capital D. Right? Okay. This is general meaning and the formula for the power of lens. Again, if you know the focal length of the lens, we can calculate the power of lens. Simple question. If I'll ask the convex lens of focal length is 10 centimeter, then find the power of lens. Right class, this is a simple question. What is the solution? F, what is the focal length of the convex lens? F 10 centimeter, right? Be remember this is the SI unit, right? Here mostly student they are making the mistake that is this is the SI unit of the diopter, so we need to convert this focal length in SI unit before putting in a formula. ओके, सो SI यूनिट यानी कि सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना लिखेंगे? 10 into 10 raised to power minus 2 मीटर।
सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इज टू कितना होता है 1/100 मीटर, 1/100 यानी 10⁻⁻² मीटर, राइट क्लास। सो वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला P is equals to 1/f, so 1/10 into 10⁻², so -2 ऊपर जाके +2 बन जाएगा 10⁻²/10, 10⁻² यानी कितना 100/10, 1 0 कैंसिल, तो P is equals to कितना मिलेगा 10 डायोप्टर। That should be your answer। देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो पावर ऑफ लेंस भी कितना मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। इन शॉर्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको हमेशा पावर ऑफ लेंस क्या मिलेगा पॉजिटिव, यानी अगर पॉजिटिव आपको पावर ऑफ लेंस दिया है और पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द लेंस, आंखें बंद करके बोल सकते हो आप कॉन्वेक्स लेंस। जैसे इसके रिवर्स क्वेश्चन में पूछता हूं, द पावर of lens is 15 centimeter, find the focal length। रिवर्स है ना, सॉल्यूशन P is equals to 15 सेंटीमीटर। अभी प्लस, अगर मान लो यहाँ पे प्लस साइन दिया है तो प्लस साइन आया यानी कौन सी लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, अगर माइनस हो तो कॉनकेव लेंस, राइट। और कोई भी साइन नहीं है तो यानी प्लस ही हम मानते हैं, है ना। सो फोकल लेंथ, ओके, सो F कितना होगा, F इज इक्वल्स टू 15, सॉरी पावर ऑफ लेंस ऑफ द, यहाँ एक गलती हो गई मेरी, पावर ऑफ लेंस ऑफ इज प्लस 15 डायोप्टर, ओके। फाइंड द फोकल लेंथ, ओके, ऑफ लेंस। So next question is the power of lens is 15 diopter. Find the focal length of the lens. Exactly इसकी reverse है। So here power of lens is 15 diopter. Focal length कितना होगा 1/p. P is equals to 1/f, so F is equals to 1/p. So 1/15. Now put up the values. So we will get after solving F is equals to 0. अप्रोक्सीमेटली 0.06 मीटर, तो सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर चेक कर लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट आएगा, सॉरी 6 देन अगेन 10, लगभग 6 तो 6.6 सेंटीमीटर। सो दैट शुड बी योर आंसर, ओके क्लास। सेम वे कॉनकेव के लिए आएगा, कॉनकेव का अगर आता तो आंसर क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा, पावर ऑफ लेंस क्या मिलेगा निगेटिव, पावर ऑफ लेंस क्या मिलेगा निगेटिव, किसके लिए कॉनकेव के लिए, राइट। इसी में एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट, किस तरह से पूछे जाते हैं और फिर हम स्टॉप कर देंगे। सो क्वेश्चन, so question on the basis of power of lens, a convex lens form the image at 15 centimeter and object placed at 30 centimeter. Find the focal length and power of lens. Okay, पहले तो बात आपको क्लियर करना पड़ेगा लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स, डायरेक्टली आपको गिवन है, सो सॉल्यूशन में गिवन डेटा उसी के हिसाब से लेंगे। इमेज V, ओके, राइट, कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर, ओके क्लास। U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, ओके। ध्यान रखना अगर इस कैलकुलेशन में जब आप F निकालोगे, अगर F U से बड़ा मिलता है या U F से छोटा मिलता है ना, यानी कि ये इसका मीनिंग होगा U और F के बीच में रखा है, ठीक है ना। वैसे जनरली मिलेगा तो नहीं, बट चेक कर लेना एक बार। सो क्या निकलेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सो 1/15 माइनस ऑफ -30, so 1/15 plus 1/30, that is 1/,
F इज इक्वल टू कितना, डायरेक्टली लिख लो, मैं एलसीएम कितना आएगा 30, सो 1/f लिख लेते हैं, 1/f 30, तो इधर आएगा 2 प्लस 1/30, तो F इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। F अगर 10 सेंटीमीटर है तो P कितना मिलेगा 1/f। ध्यान रखना डायरेक्टली मत पुट करना, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लिख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, 10 into 10 raised to power minus 2 meter, so 1/10 into 10 raised to power minus 2 meter, so 100 माइनस 2 पर जाके क्या बन जाएगा प्लस 10 raised to power 2/10, यानी कि 100/10, यानी कि 10 diopter is your answer, 10 diopter is your answer. So this kind of the question they may ask. I hope you got the idea, right, for the power of lens. One more question we will solve for the concave lens. Okay, next question. A thin lens has a focal length of minus 10 centimeter. What is the power of lens and what is its nature? Right? So we need to find out by using a formula. First of all, F is equals to minus 10 centimeter, minus given है, यानी कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, राइट। सो F is equals to minus 10 सेंटीमीटर। ओके, सो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/f, मीटर में कितना होगा, ओके -10 बहुत बार हो गया, मैं थोड़ा सा वैल्यू कुछ चेंज कर लेता हूँ, ले लेते हैं अपन 20 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, राइट। मैंने क्वेश्चन फिर से लिखा है, a thin lens has focal length of minus 20 centimeter, what is the power of lens and what is its nature? So F is equals to minus 20 सेंटीमीटर, यानी माइनस है, यानी कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। आंखें बंद करके आप सोच सकते हो, है ना। सो P इज इक्वल्स टू, पहले मीटर में लिख लीजिए इसको, -20 into 10 raised to power -2 मीटर। सो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। सो 1/-20 into 10 raised to power -2, -2 पर जाके +2 बनेगा, 10 raised to power +2/-20। सॉल्व करते हो आप इसको, क्या मिलेगा 100/-20, यानी कि -5 डायोप्टर। देखो मैंने बोला था फोकल लेंथ अगर माइनस होगा तो पावर ऑफ लेंस भी क्या मिलेगा माइनस, पावर ऑफ लेंस माइनस हो तो आंखें बन के आपका लेंस क्या होगा, नेचर कौन सा, नेचर क्या होगा, कॉनकेव लेंस। सो नेचर इज, क्या लिखोगे इसमें, कॉनकेव लेंस, और लिख सकते हो डाइवर्जिंग लेंस, right class? So this is the questions related to the power of lens. Power of lens में और एक क्वेश्चन पूछा गया था, या कंसेप्ट पूछा गया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, राइट। सो यू कैन मेंशन द हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि मान लेते हैं एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और इसके साथ मैं कंबाइन कर रहा हूं कॉनकेव लेंस। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, राइट। इसका मान लेते हैं पावर ऑफ है P1 और इसका पावर है P2, तो टोटल पावर ऑफ लेंस कितना मिलेगा, पावर ऑफ लेंस, हमेशा पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स का क्या मिलता है +P1 और कॉन्वेक्स का -P2। फॉर एग्जांपल लेता हूं P1 है 6 डायोप्टर और P2 है -4 डायोप्टर, राइट। तो क्या मिलेगा 6 डायोप्टर -4 डायोप्टर, टोटल कितना मिलेगा 2 डायोप्टर इज द टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। ऐसे सेवरल हो सकते हैं, सेवरल पैटर्न हो सकते हैं कॉम्बिनेशन के, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, 4। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटा सा मैं ले लेता हूं P1 जहां जहां प्लस 3 डायोप्टर, P2 -4 डायोप्टर, P3 6 डायोप्टर, P4
5 डायोप्टर, राइट। पूछा गया फाइंड द टोटल पीटी, टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे, पीटी इज इक्वल्स टू +3 -4 +6 +5, राइट। दैट इज P1 -P2 P3, लाइक दैट वी कैन राइट, या P1 P2 P3 इस तरह से लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप फॉर्मूले में आप प्लस लिखे तो भी चलेगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे जैसे फॉर्मूला इसका भी आप लिख सकते हो इस तरह से, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस, ताकि इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस गिवन ही होगा। ओके, सो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, PT इज इक्वल्स टू -1, यहां से हट गया तो 10 डायोप्टर, राइट। सो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज में एक छोटा सा कंसेप्ट पूछा गया है, राइट। सो दिस इज द अप टू दिस refraction part, right, over as per the upgraded syllabus we will start on next lecture, right। जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई के रूल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम अपडेटेड सिलेबस से हिसाब से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ा ये सब कुछ है, इसके आगे का जो पोर्शन यानी लेक्चर्स आएंगे, राइट, वो आपके अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आएंगे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। और कोरोना के कारण थोड़ा सेफ रहिएगा। बाय।